Good morning, students. Today your Manish sir is present in front of you with a very new topic, that is ideal and non-ideal solution. So let us discuss one by one. What is ideal solution? The solution which follows the Raoult's law for entire range of concentration, then it is called as ideal solution. Similarly, if the solution does not follow the Raoult's law for the entire range of concentration, then it is called as non-ideal solution. Okay. So let us prove this statement with the help of some properties. And the first property is the total vapor pressure. Second is the change in volume. And third is change in enthalpy. If the total vapor pressure observed one and the calculated one is equal to each other, then it is ideal solution. Similarly, if the change in volume and change in enthalpy is equal to 0, then it is called as ideal solution, which I mentioned here. Okay, if these three conditions satisfy over the solution, then that solution is called as ideal solution. And if these three conditions are not satisfied, that means they are not equal to each other, or this both are does not equal to 0, that means it has some value, then it is called as non-ideal solution. Okay, then let us discuss one by one all the properties. Okay, now the first property is how we can calculate the first property. Okay, here there is a three vessels, and in first vessel there is A component present in it, and in second vessel there is B component present in it. With the help of manometer, when we calculate the vapor pressure of the pure component A, suppose it is, for example, 30 mm. Okay. And when we calculate the B component, then it is round about 40 mm. Okay. Now when we add both the components in the third vessel, then the total vapor pressure is equal to, if it is equal to 70 mm, then the difference between this both total vapor pressure is equal to 70. Okay. Now when we calculate this same vapor pressure according to the Raoult's law, and if it is equal to the same value which we observed from the manometer, then they both are equal to each other. That means the solution follows the Raoult's ideal solution. The solution follows the ideal solution. Okay. Similarly, when we calculate this property, okay, how we calculate the change in volume? If it is 30 ml and if it is 40 ml, if the vessel first containing A component with carrying 30 ml, and in second vessel B component is present having 40 ml. When these two components get mixed with each other in a third vessel, then if the total volume of the third vessel will be 70 ml, then the change in volume, that is delta V, is equal to Vf minus Vi. Vf, that means final volume, final volume is 70 ml, that is 70 minus Vi initial is 30 plus 40, that means it is 70, then it is equal to 0, and if it is equal to 0, that means it is ideal solution. But how this pressure or volume or change in enthalpy all are related to the ideal solution, and how we can calculate that this is almost equal to or may not be equal to?
all the properties depend upon the interactions between the molecule. That means the force of attraction exists between the same molecule, and when we mix with each other, then the force of attraction exists between the two different molecules. Okay, that means, for example, if in first vessel there is only A components are present in it, that means if all the that means there is a bond between AA, or there is some force of attraction between AA molecules according to their nature. Similarly, there is some force or bond exists between the BB molecules, but when we add both the components in the third vessel, that means there is some new force of attraction is created between A and B molecule. But if the force of attraction remains same, almost same, then the volume remains same. That means same means the summation of the initial volume 30 plus 40, that is 70 volume exists in the third vessel. But if there is some change in force of attraction between the A molecules, okay, if there is some change in force of attraction between the AB molecules, then the volume does not equal to 0. That means the change in volume does not equal to 0. It may be increased from the original one, or it may be decreased. Okay, but guys, ये कैसे? ये तुमको अभी लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये ऐसा मैं बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये ए के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, यहाँ पे ए टाइप के सब फ्रेंड्स बैठे हैं, दैट मीन्स दे ऑल आर बेस्ट फ्रेंड्स विथ ईच अदर. वैसे बी के बीच में भी दे ऑल आर बेस्ट फ्रेंड्स. बट जब जैसे अपने दोनों सब्सटेंस को अपने ने थर्ड वेसल में ऐड किया और इन दोनों के बीच में भी फ्रेंडशिप का जो पैरामीटर है वो एक्चुअली सेम रहा, इक्वल रहा, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, यहाँ पे सब ए टाइप के बैठे हैं, यानी उतना ही जगह रोक रहे हैं क्योंकि सब पास पास में बैठे, बिकॉज दे ऑल आर गुड फ्रेंड्स. वैसे यहाँ पे भी दे ऑल आर गुड फ्रेंड्स, बट इफ दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स तो फिर वो लोग भी यहाँ पे भी इसी तरह बैठेंगे. दैट मीन्स उनका वॉल्यूम उतना ही एग्जिस्ट करेगा. In this way, if there is no change in volume, that means delta V mixing, that is change in volume Vf minus Vi is equal to 0. But agar if the force of attraction exists, if the force of attraction exists is more, अगर बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, या बहुत कम हुआ, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा. देयर इज सम चेंज ऑब्जर्व्ड इन द वॉल्यूम, दैट इज इट डज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स इट इज नॉन आइडल. ओके, सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी? एंथैल्पी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड और टू फॉर्म द बॉन्ड. ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वो चीज कैसे अप्लाई हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, there is some force of attraction or bond between AA molecules. Okay, but when we mix with each other, then we have to break the AA molecule bond and BB molecules bond. Okay, so we need some amount of energy to break that bond. Okay, और यहां पे क्या हो रहा है guys, the bond to make a bond between AB, when the bond form between A and B, some amount of energy is released. Always अपने को पता है कि जब भी दो कंपोनेंट्स के बीच में कुछ बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है. दैट मीन्स यहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक. और यहां पे क्या हो रहा है गाइस, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स दिस बोथ आर एंडोथर्मिक. यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव. एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे एनर्जी एड अप हुआ है, रिक्वायर्ड हुआ है. ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ है, यानी ये कैसा हुआ, नेगेटिव. ओके, बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे 30 किलो जूल वैल्यू सेम रखा है फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, और यहां पे 40 किलो जूल, और यहां पे अगर 70 किलो जूल रिलीज हो रहा है, ये -70, दैट इज +30 एंड +40. ठीक है, अगर ये दोनों एंडोथर्मिक है, इफ बोथ
the component require energy, this component require 30 kilojoule to break the bond between them, and this component require 40 kilojoule to break the bond between them. And when we add both the components, then to make a bond between A and B, some amount of energy must be released, and that energy is 70 kilojoule. And if the change in enthalpy, like change in volume, there is change in enthalpy. If delta H change in enthalpy is equal to 0, that is 30 plus 40, that is plus 70, and here minus 70, minus 70 plus 70, energy absorbed plus energy released is equal to 0. That means it is ideal solution. And if there is some change observed in it, that means it is non-ideal. अब गाइज ये मैं कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल इफ समझो कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर ये ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सपोज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल इज मोर, इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, आपस में ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल से भी ज्यादा अच्छी दोस्ती ए बी मॉलिक्यूल्स की। दैट मीन्स दे ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे क्लोज टू ईच अदर होंगे, पास में आएंगे, यानी क्या होगा, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाना मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और वैसे अगर उनके बीच में उतना अच्छी दोस्ती नहीं है, देयर इज not much that force of attraction exists between AB, there is less force of attraction exists between AB, okay, then AA and BB, that means there is some amount of some like repulsive force is present, okay, that means वो लोग पास में नहीं बैठेंगे, okay, जैसे पास में नहीं बैठेंगे इसका मतलब क्या होगा, वो दूर बैठेंगे तो they want some more space, that means the volume get expanded, that means वहां पे change in volume क्या होगा, more हो जाएगा, that is it is greater than 0, okay। और similarly जैसे फॉर एग्जाम्पल अब चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं और टोटल वेपर प्रेशर भी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे बात करते हैं। अभी मैंने जस्ट बोला कि यहाँ पे ए और बी के कंपैरिजन में ए बी मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा था। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मतलब देयर इज सम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। अब जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो यही वही सेम टेम्परेचर पे जो यहाँ पे दिया वही अगर अपने यहाँ पे देंगे तो क्या उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर बनेगा जितना पीए या पीबी में बना? नहीं, देयर इज सम लेस अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड, ओके, सम लेस होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्या टाइटली बाइंडेड है, यानी वो इजिली इवोपरेट एस्केप होने नहीं देंगे। दैट मीन्स द वेपर प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनली ऑब्जर्व्ड वन। इन दिस केस इट इज लेस देन दैट, ओके। तो वो भी कौन सा केस फॉलो करता है? नॉन आइडल को। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अब ऑपोजिट केस लेते हैं। अगर ए और बीबी के कंपैरिजन में ए बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है का मतलब द वॉल्यूम गेट एक्सपांड, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब ग्रेटर देन 0 होगा तो जो एनर्जी अपने को देनी पर यहां पे जो अपने टेम्परेचर यहां पे अप्लाई किया वही टेम्परेचर मैं यहां अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स गेट इजीली इवोपरेट। मॉलिक्यूल्स इजीली इवोपरेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा दैट मीन्स इट इज नॉर्मली क्या होगा, ग्रेटर देन। पहले क्या था, लेस देन, और अभी क्या हो गया, ग्रेटर देन। In this way, there are two possibilities for non-ideal solution. There is some positive, maybe positive result, or there is some negative result also. That's why in non-ideal, I put here the two division, that is negative one and the positive one. It may be less than also, or it may be greater than also. But this less than or greater than, all conditions depend on the force of attraction between the individual one on and after mixing these two components. Okay, guys, इस तरीके से अपने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम के लिए एक वैल्यू लेके अपने चेक करते हैं। यहां पे 30 ml था, ठीक है, और यहां पे 40 ml है, ओके गाइस। अब जैसे अपने ने दोनों को ऐड किया और तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है,
ओके ज्यादा है तो क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम गेट क्लोज विथ ईच अदर। तो 30 + 40 ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली अगर आइडल होता तो इफ इट इज आइडल देन इट द वैल्यू विल बी 70 ml। ओके बट इफ इट इज नॉन आइडल तो क्या होगा वहां पे क्या हो जाएगा 70 के बदले फॉर एग्जाम्पल सपोज 60 ml आया, पी टोटल इज 60 ml, पी टोटल 60 ml आया। इसका मतलब क्या होगा जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी क्या हो जाएगा वीएफ माइनस वी है फाइनल माइनस इनिशियल। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 30 + 40 70 और 70 कितना ये किसका आया इनिशियल का, बट फॉर्मूला क्या होता है वीएफ माइनस वी है सॉरी, तो 60 - 70 दैट मीन्स -10 दैट इज इट इज लेस देन 0। ठीक है गाइस, इस तरीके से तुम कोई भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। एंथैल्पी भी सिमिलरली सेम आएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से द एनर्जी रिलीज इज मोर, क्योंकि वो जैसे वो दोनों पास में आएंगे यानी गुड फ्रेंड जैसे देखते हैं तो क्या हो जाएगा खुश हो जाते हैं। दैट मीन्स दे रिलीज सम एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा जब दो कंपोनेंट मिक्स्ड होगा विद अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा मतलब माइनस की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। एनर्जी रिलीज यानी एक्सोथर्मिक दैट मीन्स इट इज माइनस, और जब एनर्जी देना पड़ रहा है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मतलब क्या होगा एंडोथर्मिक। ओके तो फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एच के लिए अपने देखे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 30 है ये 40 है, बट यहाँ पे किलो जूल ले लेना क्योंकि एनर्जी है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे फॉर द थर्ड वेसल 30 + 40 नॉर्मली 70 होता है, बट फॉर आवर केस क्या था मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए तो मतलब क्या हो जाएगा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ मतलब -80 किलो जूल। ठीक है -80, ठीक है ये -80 है और ये 30 और ये 40 यानी 70 और H1 + H2 दैट इज टोटल एंथैल्पी। क्या मिलेगा अपने को, एंथैल्पी मींस जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और कितना एनर्जी रिलीज हुआ। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 70 - 80 यानी क्या हो जाएगा -10 दैट मीन्स इट इज ऑल्सो लेस देन 0। इस तरीके से सब कुछ पूरा हर एक पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है गाइस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द AB molecules and the AA molecules. Okay, in this way there are two cases exist in the non-ideal solution, which I already mentioned here, that if the AA molecules and BB molecules, the force of attraction between AA and BB, AA and BB force of attraction is less than that the force of attraction present between AB, then it follows negative deviation। क्योंकि सब चीज क्या हो जाएगा पास में आ जाएगा, पास में आ जाने से क्या हो जाएगा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा मीन्स नेगेटिव, और एनर्जी भी क्या हो जाएगा मोर सबसे ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, और इस तरीके से वेपर प्रेशर भी क्या होगा इजीली मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं होंगे, मतलब वेपर प्रेशर भी इजीली नहीं बनेगा। ओके गाइस, और एंड वाइसा वर्सा सब कुछ पूरा पॉजिटिव डिविएशन के लिए उल्टा ले लीजिएगा। ए और बीबी के मॉलिक्यूल्स का अगर इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अगर ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन ए बी, दैट मीन्स के वहां पे मॉलिक्यूल्स पास में नहीं आएंगे, दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर लाइक इन द फर्स्ट केस। ओके, इस तरीके से देखेंगे तो क्या होगा पास में नहीं आएंगे तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, दैट मीन्स द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली फॉर पॉजिटिव डिविएशन। अब गाइज अगर ये आइडल होता रॉल्स लॉ फॉलो करता, ठीक है, फॉर आइडल सॉल्यूशन ये जो लाइन है अपना नेगेटिव डिविएशन वाला जो डार्क लाइन मैंने बनाया है, इट शोज द नेगेटिव डिविएशन एंड द डार्क लाइन हियर शोज द पॉजिटिव डिविएशन। बट जो डॉटेड लाइन है वो आइडल सॉल्यूशन है। वो आइडल सॉल्यूशन का अगर ग्राफ बनाने बोलते हैं तो जस्ट तुमको ये जो डार्क लाइन है गाइज उसको रिमूव कर देना है। दैट मीन्स द graph of the Rawls law only the same graph as that of the same graph follow for the ideal solution, and for non ideal यहां पे अपने को क्या बताना है नेगेटिव डिविएशन है, मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी आइडल के कंपैरिजन में लेस हो जा रही है। सो डिविएशन जो है हमेशा वो क्या बताएंगे आइडल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन बताएंगे ग्राफ को, और अगर पॉजिटिव डिविएशन होगा तो वैल्यू हमेशा सब चीज का क्या होगा ज्यादा होगा। दैट मीन्स द पॉजिटिव डिविएशन मतलब जो आइडल है उसके कंपैरिजन में अपने थोड़ा उस वैल्यू को ग्राफ को अपर साइड बताएंगे। ओके गाइस, इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट
call me on the below mentioned number or you can message me also. Thank you.